Good morning students. This video is for Standard 8 Subject Science. In this video lecture we will study about our chapter number 9 Reproduction in Animals. Animals में reproduction कैसे होता है, यानी कि एक एनिमल दूसरे एनिमल्स को कैसे बर्थ देता है, ये सारी प्रोसेस है वो हमें इस चैप्टर में समझनी है. Now, do you recall the processes of digestion, circulation and respiration which you have studied in your previous classes? यानी कि ये जो सारी प्रोसेसेस है in human body as well as in animal body, they are important. Digestion, circulation मतलब कि blood जो circulate होता है वो, and respiration. These processes are essential for the survival of every individual. You have also learned about the process of reproduction in plants. हमने आगे के स्टैंडर्ड में प्रोसेस पढ़ी है reproduction in plants, यानी कि एक प्लांट में से दूसरा प्लांट कैसे बनता है. Reproduction is essential for the continuation of a species, यानी कि स्पीसीज में जो भी मेंबर्स हैं वो कंटिन्यू रहे उसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है. अगर न्यू बेबीज को बर्थ नहीं मिलेगा तो वो स्पीसीज है वो खत्म हो जाएगी, उनकी कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो जाएगी. इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ ऑर्गेनिजम्स हैड नॉट रिप्रोड्यूस्ड, यानी कि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो नहीं रहेगा. You will realize that reproduction is very important as it ensures the continuation of similar kinds of individuals generation after generation. Reproduction की वजह से generation after generation कोई ना कोई है वो reproduce होता रहता है. Now modes of reproduction. In different animals there are different modes of reproduction. जैसे कि हमें यहाँ पे टेबल दिया है 9.1, उसमें एनिमल और उसकी यंग वन यानी कि उसके बच्चे का नेम दिया है. जैसे कि ह्यूमन है तो उसके यंग वन को हम क्या बोलते हैं, बेबी. फिर कैट का क्या होता है, किटन. वैसे ही सारे एनिमल्स और बर्ड्स के डिफरेंट यंग वंस होते हैं और उन सब में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस भी डिफरेंट होती है. नाउ ये जो रिप्रोडक्शन है उसको मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो हमें दोनों के बारे में समझना है. First of all, we will learn about sexual reproduction. Now, what is sexual reproduction? You will remember that plants that reproduces sexually have male and female reproductive parts. जैसे आपको पता है कि फ्लावर्स में एक है वो मेल पार्ट होता है और दूसरा है वो फीमेल पार्ट होता है. फिर इन दोनों के बीच में प्रोसेस होके फिर नया प्लांट या तो नया फ्लावर बनता है. In animal also males and females have different reproductive parts or organs, यानी मेल और फीमेल दो अलग-अलग reproductive parts होते हैं एनिमल्स में भी. Like plants, the reproductive parts of animals also produce gametes that fuse to form a zygote. It is the zygote which develops into a new individual, यानी कि दोनों की हेल्प की मदद से ये जो zygote यानी जिसमें बेबी है, जिसमें से बेबी बनता है वो क्या होता है, zygote. यानी सबसे पहले कोई भी यंग वन जब पैदा होता है तो वो किस में से डेवलप होता है, zygote में से डेवलप होता है. It is the zygote which develops into a new individual. This type of reproduction, beginning from the fusion of male and female gametes, is called sexual reproduction. So, it is the definition of sexual reproduction. What the type of reproduction beginning from the fusion of male and female, यानी कि मेल और फीमेल ऑर्गन का फ्यूजन होने की वजह से जो gametes प्रोड्यूस होते हैं is called जो zygote है वो प्रोड्यूस होता है उसे क्या बोलते हैं, sexual reproduction. Now we are studying about reproductive organs. First is male reproductive organs. In male reproductive organs include a pair of testes, 2 sperms, 2 sperm ducts and a penis. You have given the figure about
male reproductive organ. यानी the test produce the male gametes called sperms. यहाँ पर आपको sperm की फिगर भी दी गई है. Millions of sperms are produced by the testes. जो testes है उसमें से millions of sperm है वो produce होते हैं. Look at figure 9.2 which shows the picture of sperm. Sperm कैसा होता है? तो बेसिकली sperm को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है कि जो उसका ऊपर का फर्स्ट पार्ट होता है जिसे हम हेड बोलते हैं, सेकंड यानी कि मिडल में जो होता है वो मिडल पीस होता है और लास्ट में है टेल होता है. दो sperms are very small in size, each has a head, a middle piece and a tail. Does it appear to be a single cell? यानी कि वो क्या है? Each sperm is a single cell यानी कि एक ही सेल होता है with the usual cell components यानी कि जो required cell के components है उसकी वजह से बना हुआ एक सेल है. Now female reproductive organs. The female reproductive organs are a pair of ovaries, oviducts यानी जिसे हम fallopian tube भी बोल सकते हैं and the uterus. उसकी फिगर भी यहाँ पे दी गई है. तो ovary produces female gametes called ova यानी जो होता है eggs होते हैं. In human beings, a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month. Uterus is the part where development of the baby take place. यानी कि जो ovaries होती है उसमें से हर मंथ एक एग या तो मैच्योर्ड एग है वो रिप्रोड्यूस होता है और फिर यूटेरस है वो क्या है वहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट होता है. लाइक दिस स्पर्म एंड एग इज आल्सो अ सिंगल सेल यानी कि जैसे स्पर्म सिंगल सेल है वैसे भी ये एग जो फीमेल ऑर्गन में होता है वो भी क्या होता है एक सेल होता है सिंगल सेल. देन फर्टिलाइजेशन. अब देखो यहाँ पे ह्यूमन ओव्यूल की फिगर दी गई है जिसमें बीच में न्यूक्लियस दिया गया है. नाउ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन क्या होता है? The first step in the process of reproduction is the fusion of the sperm and an ovule. यानी कि सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है रिप्रोडक्शन के लिए वो क्या होना चाहिए? फ्यूजन होना चाहिए ओव्यूल एंड स्पर्म. स्पर्म क्या है? वो एक मेल ऑर्गन का एक पार्ट है और जो ओव्यूल है ओव्यूल क्या है? वो एक फीमेल ऑर्गन का पार्ट है. When sperms come in contact with an egg, one of the sperms may fuse with the egg. Such fusion of the egg and the sperm is called fertilization. यानी दोनों का जो फ्यूजन होता है उसे क्या बोलते हैं? fertilization. During fertilization, the nuclei of the sperm and the egg fuse to form a single nucleus. यानी कि दोनों मिलके क्या बनते हैं? single nucleus बनाते हैं. This results in the formation of fertilized egg or zygote. zygote यानी कि जो egg fertilize होता है जो बड़ा बनता है फिर उसमें से क्या बनता है? बेबी बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? zygote. यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस दी जैसे कि स्पर्म है और ओव्यूल है दोनों का कांटेक्ट होने के बाद एक न्यूक्लियस सिंगल न्यूक्लियस बनता है. नाउ द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड द स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर. So the new individual inherits some characteristics from the mother and some from the father. यानी कि मदर और फादर दोनों की कुछ न कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बेबी में पाई जाती हैं. Look at your brother or sister. See if you can recognize some characters in them similar to those of your mother or your father. यानी कि आपके जो सिस्टर ब्रदर हैं या तो खुद आपको आपकी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है या तो आपका कुछ अपीयरेंस है जैसे किसी की नोज उसकी मम्मी जैसी होती है तो कुछ ना कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो मदर या तो फादर जैसी होती है. Now fertilization which take place inside the female body is called internal fertilization. ये जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पे होता है? ये फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी के अंदर यानी इसे क्या बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन. Internal fertilization occurs in many animals including humans, cows, dogs and hens. यानी कि ये जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन ये सारे एनिमल्स में होता है. You will surprised to know that in many animals fertilization takes place outside the body of the female. यानी कि कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ पे होती है? आउटसाइड द बॉडी.
In this animals fertilization take place in water. Let us find out how this happens. यानी ये हम देखेंगे कि आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। इससे पहले हम देखेंगे टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में। Have you heard of test tube babies? Bhuja and Parvati's teacher once told them in class that in some women oviducts are blocked. यानी कि कुछ वुमेन्स में जो oviducts होती है जिसमें से ओवरी बनता है वो क्या होते हैं, ब्लॉक होते हैं। These women are unable to bear babies because sperms cannot reach the egg for fertilization. यानी कि ऐसी जो वुमेन्स हैं वो बेबी को बर्थ देने के लिए कैपेबल नहीं होती है। In such cases, doctors collect freshly released egg and sperms and keep them together for a few hours for IVF or in vitro fertilization. यानी vitro fertilization क्या होता है, fertilization outside the body. In case fertilization occurs, the zygote is allowed to develop for about a week and then it is placed in the mother's uterus. यानी कि उसको आउटसाइड द बॉडी ज़ाइगोट है उसको 1 वीक के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, डेवलप किया जाता है, फिर जो फीमेल है उसके यूटेरस में उसको पोस्ट किया जाता है। कंप्लीट डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द यूटेरस एंड द बेबी इज बोर्न लाइक एनी अदर बेबी। यानी जैसे नॉर्मल बेबीज बनते हैं वैसे ही ये बेबी बर्थ लेता है। बेबीज बोर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब babies. This term is actually misleading because babies cannot grow in test tube. यानी कि ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे कि टेस्ट ट्यूब है, लेकिन इसका मीनिंग डिफरेंट होता है। नाउ हम देखेंगे कि आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ड्यूरिंग स्प्रिंग और एनी रेनी सीजन फ्रॉग्स एंड टॉड्स मूव टू पॉन्ड्स। अब देखो टॉड्स क्या है, वो है फ्रॉग्स के बच्चे यानी फ्रॉग्स का बेबी। To ponds and slow flowing streams, when the male and female come together in water, the female lays hundred of eggs, unlike hen's egg. यानी कि जैसे hen egg रखती है वैसे ही जो frog female frog है वो hundreds of eggs है वो होल्ड करते हैं। Frog's egg is not covered by a shell and it is comparatively very delicate. A layer of jelly holds the eggs together and provides protection to the eggs. यानी कि जो hen का एग होता है उसकी तरह प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होता है, लेकिन जो जेली होता है लेयर ऑफ जेली इन द पॉन्ड वो प्रोटेक्ट करता है एग्स को। नाउ एज द eggs are laid, the male deposits sperms over them. पहले फीमेल है वो hundreds of eggs से वो ले करते हैं, फिर जो मेल फ्रॉग है वो क्या करते हैं वो एग के ऊपर और स्पर्म्स उसे डिपॉजिट करते हैं। Each sperm swims randomly in water with the help of its long tail. These sperms उसमें swim करते हैं। The sperms come in contact with the eggs. This results in fertilization. जब ये sperms egg के contact में आते हैं तब fertilization occurs होता है। This type of fertilization in which the fusion of a male and female gamete takes place outside the body of the female is called external fertilization. ये जो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एग और स्पर्म का कांटेक्ट, और ये जब आउटसाइड द बॉडी होता है जैसे क्या बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इट इज वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स लाइक ए फिश, स्टारफिश। ये इसमें ज्यादातर होता है फिश और स्टारफिश में। नाउ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। व्हाट इज एम्ब्रियो? Fertilization results in the formation of zygote which begins to develop into an embryo. यानी कि zygote में से क्या बनना स्टार्ट होता है, embryo बनना स्टार्ट होता है। The zygote divides repeatedly to give rise to a ball of cells. The cells then begin to form groups that develop into different tissues and organs of the body. तो जो सेल्स होता है वो क्या, जैसे कि हमने पहले देखा कि एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होने की वजह से एक न्यूक्लियस क्रिएट होता है। तो ना ये न्यूक्लियस में से क्या डेवलपमेंट होता है, न्यूक्लियस डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। टिश्यूज क्या होता है, वो एक तरह का कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है, यानी कि बहुत सारे सिमिलर टाइप के सेल्स जैसे इकट्ठा होते हैं तो वो क्या बनाते हैं,
वो बनाते हैं टिश्यू और टिश्यू में से फिर ऑर्गन्स बनते हैं। दिस डेवलपमेंट स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एन एम्ब्रियो, यानी कि ये जो डेवलपमेंट स्ट्रक्चर है उसमें से क्या बनता है, एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। The embryo continues to develop in the uterus. It gradually develops body parts such as hands, legs, head, eyes, ears, etc. और धीरे धीरे ये सारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं जो नॉर्मल ह्यूमंस में दिखाई देते हैं, हैंड्स, लेग्स, वो सारे रिप्रोड्यूस होना स्टार्ट होते हैं। The stage of the embryo in which all the body parts can be identified is called a fetus. यानी कि जब एक स्टेज आता है कि सारे बॉडी पार्ट्स वो डेवलप हो जाते हैं और जिसे हम देख सकते हैं, तो वो क्या होता है, fetus. When the development of the fetus is complete, the mother gives birth to the baby. यानी कि ये जो fetus का डेवलपमेंट हो जाता है उसके बाद जो मदर है वो बेबीज को बर्थ देती है। Internal fertilization take place in hens also, but do hens give birth to babies like human? No. hen का रिप्रोडक्शन सिस्टम और ह्यूमंस का रिप्रोडक्शन सिस्टम डिफरेंट होता है। Soon after fertilization, the zygote divides repeatedly and travels down the oviduct. As it travels down, many protective layers are formed around it. और इसमें से क्या बनता है, ये किसके बारे में बताया गया है, hen के बारे में। The hard shell that you see in a hen's egg is one such protective layer. जो उसके एग के ऊपर का जो लेयर होता है वो ऐसा ही प्रोटेक्टिव लेयर होता है। After the hard shell is formed around the developing embryo, the hen finally lays the egg. The embryo takes about 3 weeks to develop into a chick. You must have seen the hen sitting on the eggs. वो किसके लिए होता है, क्योंकि उसकी वजह से जो egg है उसको वहाँ बनती है। After the chick is completely developed, it bursts open the egg cell. यानी कि जो completely वो develop हो जाता है तो फिर egg से वो burst होता है, उसमें से फिर बेबी है वो निकलता है, यानी कि चिकन। इन एनिमल्स व्हिच अंडरगो एक्सटर्नल fertilization, development of the embryo takes place outside the female body. The embryos continue to grow within their egg coverings. After the embryo is developed, the eggs hatch. After the embryo develop, यानी embryo जब develop होता है उसके बाद जो egg है वो hatch होता है। Now you must have seen numerous tadpoles swimming in ponds and streams. जो tadpoles है वो जिसमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, आपको ponds में बहुत सारे tadpoles दिखाई देंगे। Now what is viviparous and oviparous animals? These are two different type of animals. First, viviparous animals. ये क्या होता है, those animals which lay eggs are called oviparous, and the animal which give birth to young ones are called viviparous animals. The eggs of a few animals are easy to observe because their mothers lay them outside their bodies. और कुछ ऐसे eggs होते हैं जो हम नॉर्मली देख नहीं सकते हैं। Now young ones to adults, यानी कि young one में से adult कैसे बनता है, तो यहाँ पे दो एनिमल्स के बारे में, तो सिल्क है, सिल्कवॉर्म्स, और दूसरा फ्रॉग के बारे में बताया गया है कि सिल्कवॉर्म के डेवलपिंग स्टेज क्या होता है, पहले एग बनता है, उसमें से लार्वा और कैटरपिलर बनता है, फिर प्यूपा बनता है और फिर एडल्ट बनता है। लेकिन जो यंग वन है वो एडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट दिखता है। जैसे कि यहाँ पे आपको लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग दिया गया है, तो पहले एग्स में से क्या कन्वर्ट होता है, अर्ली टैडपोल और फिर लेट प्रेडेटर। अगर आप देखोगे तो दोनों का लुक है बिल्कुल जैसे कि कोई फिश हो ऐसा दिखाई दे रहा है। इसको देखकर हम कोई भी नहीं बोल सकते कि इसमें से फ्रॉग बनेगा, लेकिन लेटर ऑन जब इसका पूरा डेवलपमेंट हो जाता है तो उसका अपीयरेंस फ्रॉग जैसा होता है और वो स्टार्ट करता है जंपिंग करना। यू मस्ट हैव सीन अ ब्यूटीफुल मॉथ इमर्जिंग आउट ऑफ द कोकून। में से क्या होता है, सिल्क मॉथ में भी यही होता है कि लास्ट में जो कोकून बनता है फिर उसमें से फिर से सिल्क मॉथ बन जाता है। In the case of tadpoles, they transform into adults capable of jumping and swimming. The transportation of the larva into an adult through drastic changes is called metamorphosis. यानी कि ये जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस।
What about the changes that we observe in our body as we grow? यानी कि हमारी बॉडीज में कैसे चेंज होते हैं? तो ये जो मेटामॉर्फोसिस है वो ह्यूमन बॉडीज में नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब ह्यूमन बॉडीज में यानी कि यंग वन होता है उसमें सारे डिफरेंट पार्ट्स पहले से ही होते हैं। जैसे कि यहाँ पे फ्रॉग है तो उसमें क्या होता है, जब वो पूरा का पूरा एडल्ट बन जाता है तभी ये पार्ट्स डेवलप होते हैं। नाउ कुछ ऑर्गेनिजम्स है, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, उसकी रिप्रोडक्शन सिस्टम दी गई है। तो सबसे पहले हाइड्रा। तो हाइड्रा में यहाँ पर तो फिगर 9.11 में दिया है कि क्या होता है, इन ईच हाइड्रा देयर मे बी वन और मोर bulges. These bulges are the developing new individuals and they are called buds. तो हाइड्रा में कैसे होता है कि हाइड्रा में बल्जेस यानी कि जैसे कि जो स्वॉलन पार्ट होता है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट में, फिर उसमें से धीरे धीरे डेवलप होता है और फिर उसमें से यानी कि बर्ड है वो किस में कन्वर्ट होता है, पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म यानी कि एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। दिस बर्ड्स आर सो डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स, यानी सब क्या बोलते हैं, बर्ड्स। Recall the presence of birds in Hydra. To the animals or new individuals develop as outgrowths from a single parent. यानी कि एक ही, जैसे कि हमने फ्रॉग या ह्यूमंस में देखा कि उसमें क्या होता है, पेरेंट्स में एक फीमेल होता है और दूसरा मेल होता है, लेकिन हाइड्रा में क्या है, एक सिंगल जो एनिमल है उसमें से ही दूसरा एनिमल है वो क्रिएट होता है। This type of reproduction in which only a single parent is involved is called asexual reproduction. यानी कि इसमें ही एक जैसे गांठ जैसा बनता है तो धीरे धीरे डेवलप होके वो निकल जाता है, तो वो दूसरा हाइड्रा मतलब कि दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो क्रिएट होता है। Another method of asexual reproduction is observed in the microscopic organism amoeba. और ये जो asexual reproduction है उसे हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा बर्डिंग भी बोल सकते हैं। जैसे अमीबा में क्या होता है, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। अमीबा क्या होती है, एक सिंगल सेल होती है और सिंगल सेल एक ऑर्गेनिज्म है, उसके बीच में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। Amoeba is a single cell organism that begins the process of reproduction by the division of its nucleus into the two nuclei। यानी कि उसमें रिप्रोडक्शन कैसे स्टार्ट होता है कि उसका जो न्यूक्लियस है उसमें से न्यूक्लियस को डिवाइड किया जाता है, मतलब वो डिवाइड होता है टू न्यूक्लियम। उसके स्टेज देख सकते हो फिगर 9.12। फिर क्या होता है, दिस इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू टू। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है फिर उसकी बॉडी का डिवीजन होता है। Each part of receiving a nucleus, finally two amoeba are produced from one parent amoeba। यानी कि जैसे बॉडी अलग अलग हो जाती है और दोनों बॉडी को एक एक न्यूक्लियस मिल जाता है तो वन में से टू अमीबा क्रिएट होती है। दिस टाइप ऑफ asexual reproduction in which an animal reproduces by dividing into two individuals is called binary fission। यानी कि जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में डिवाइड होता है उसे क्या बोलते हैं, बाइनरी फिशन। अपार्ट फ्रॉम बर्डिंग इन बाइनरी फिशन देयर आर अदर मेथड्स बाय व्हिच सिंगल पेरेंट्स रिप्रोड्यूसेस यंग। यानी ये तो दो मेथड थी। बर्डिंग में क्या होता है कि उसमें जैसे कि एक गांठ हो वैसा उनकी बॉडी पर होता है, फिर वो धीरे धीरे डेवलप होता है और फिर वो अलग हो जाता है। और ये जो बाइनरी फिजन है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस पहले टू न्यूक्लियस में डिवाइड होता है, फिर बॉडी का डिवीजन होता है, फिर टू एनिमल्स क्रिएट होते हैं। लेकिन ये जो बर्डिंग और बाइनरी फिजन है उससे भी अलग कुछ ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक सिंगल पेरेंट है उसकी वजह से ही बेबी का बर्थ होता है। लेकिन ये आपको अपर स्टैंडर्ड में पढ़ना है ना। ये जो हमारा रिप्रोडक्शन एनिमल्स चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। आई होप इसकी सारी मेथड्स और प्रोसेसेस और सारे ऑर्गन्स के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।